Hello students, in the previous lecture we had started with the different elementary functions of MS Word and we have seen some of the elementary functions of MS Word in the previous lecture. Now in this lecture we will start with the next component, elementary component, that is page break. So what is the use of page break? Page break, it is used to automatic in MS Word to automatically start a new page when your current page is filled. Okay, so when the current page gets over, then automatically it gets switched to your new page, and you all can type the text in that page, or you all can insert any type of image in that new page. Okay, so the page break option is used either with the help of your mouse or with the help of keyboard. Okay, so you can insert this page break option by using either your mouse or keyboard. So what is the use of page break? Page break, it is nothing but it forces the word to start the text on the न्यू पेज पे टेक्स्ट स्टार्ट करना है. आपका करंट पेज कंप्लीट होने के बाद न्यू पेज पे टेक्स्ट राइट करना है. ये करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? पेज ब्रेक. तो पेज ब्रेक विद द हेल्प ऑफ माउस कर सकते हैं या फिर आप कीबोर्ड के साथ कर सकते हो. ओके, so how to insert a page break in your document? For that there are different steps. The first step is bring your insertion point immediately before the text that has to be appear on the new page. Okay, जहाँ से आपको टेक्स्ट का न्यू पेज पे टेक्स्ट चाहिए रहेगी वहां पे आपका कर्सर लेके जाना है. ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कर्सर प्रेस किया है, फिर वो वहां पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो इंसर्ट टैब. ओके, क्लिक ऑन दिस इंसर्ट टैब और फिर वहां पे आपको पेज ब्रेक बटन अवेलेबल होगा. इंसर्ट टैब पे क्लिक करोगे तो पेजेस के ऑप्शंस है, उसमें आपको क्या दिखेगा? पेज ब्रेक. ओके, पेज ब्रेक के ऊपर आप क्लिक करोगे तो जो अपने इंसर्शन का पॉइंट जहां पे रखा है वहां से डेटा कहाँ पे होगा? पेज ब्रेक होके दैट डेटा विल बी इंसर्टेड ऑन द न्यू पेज. ओके, या फिर इसके लिए आप क्या कर सकते हो? कंट्रोल प्लस एंटर की कर सकते हो और पेज ब्रेक कर सकते हो जहां पे आपका कर्सर रहेगा और वो डेटा आप कहाँ पे मूव कर सकते हो? अपने न्यू पेज पे प्रिंट आउट कर सकते हो. ओके, दिस इज हाउ वी विल इंसर्ट द पेज ब्रेक. नेक्स्ट इज हाउ टू डिलीट दैट पेज ब्रेक. जस्ट जैसे हमने इंसर्शन के लिए किया था तो वहां पे हमें क्या करना पड़ता है कि पेज ब्रेक को क्या करना है? डिलीट करना है. तो उसके लिए हमें कौन सी की प्रेस करनी है? डिलीट की मल्टीपल टाइम्स अगर आप प्रेस करते रहोगे तो जो भी अपने डेटा राइट किया है वो डेटा क्या होगा? उस पे से डिलीट होगा और वहां पे वो पेज डिलीट कर सकते हैं हम. ओके, कभी कभी क्या होता है कि हमने डॉक्यूमेंट बनाया पर उसमें एक्स्ट्रा पेजेस हो गए. डॉक्यूमेंट को 4 पेजेस ही चाहिए पर मेरे पास ब्लैंक पेजेस 5-6 है, 2 एक्स्ट्रा ब्लैंक पेजेस है, तो वो मुझे ब्लैंक पेजेस रिमूव करने. तो मैंने क्या करना चाहिए? एट द एंड ऑफ द 4th पेज मेरा कर्सर रख के डिलीट की कंटिन्यूसली प्रेस करनी है मल्टीपल टाइम. देन दैट पेजेस विल गेट डिलीटेड. ओके, the next function is header, page numbers and footers. Now how to insert the header and footer? What is the use of header and footer, and what is the use of page number in MS Word? That we are going to study in this point. Okay, mostly header and footer is used in the documents which contains the different types of information like your page number and the total number of pages you have used, then the company logo is there, the document title is there, photo of any image, etc. These are some of the images that your header and footer will contain. Okay, so header appears at the top of your page, whereas footer appears at the bottom of your page. So this is nothing but the use of header and footer in your document. So MS document contains this header and footer. For assigning the heading, header is at the top of your MS Word document and footer is at the bottom of the MS Word document current page. Okay, so on each page there is header and footer. You all can use that for assigning the number or for writing the company's name or assigning the logo of the company. For that purpose you all can use it. Okay, it also sometimes what is the use of page number?
Microsoft has this ability that it can assign the page number to your document. Okay, that page number I've printed on your header or footer. Depending upon the user, he can choose whether he want it up or bottom, okay, or at the left or right margin. Depending upon the user, you all can give the name to your give the page numbers to your document, and that page numbers can be inserted in your header and footer. So now we will see how to insert header and footer first. Okay, now what are the different steps that are needed to add the header and footer? This is all very easy. Just we are having a quick revision. You all are familiar with all this concept. For inserting the header अगर insert करना है तो क्या करना है, insert tab के ऊपर क्लिक करना है, फिर उस पे से आपको हेडर या फुटर का बटन क्लिक करना है डिपेंडिंग अपॉन द नीड जो आपको पहले ऐड करना है. ओके, जिसकी नीड आपको पहले है वो पहले क्लिक करो. उसके सपोज आपने हेडर पे क्लिक किया है, तो हेडर पे क्लिक किया है तो क्या होगा कि इट विल डिस्प्ले द बिल्ट इन हेडर्स फ्रॉम the number of headers which are built in the MS Word document, and you can choose any one of the header which you want by clicking on that header. Okay, this is how a header is inserted in your document. Then once you select the header, okay, now you have selected that header, then that header will be applicable to the document in the editable mode. So अगर आपका document editable mode में रहेगा तो वो आपको क्या रहेगा, available रहेगा, और फिर वो document के ऊपर से text आपको क्या कर सकते हैं, आप dimmed कर सकते हैं. फिर header और footer मोस्टली आपके ribbon के ऊपर भी आपको दिखेगा, close header and footer. This also appears at the top corner of your टॉप राइट कॉर्नर ऑफ या डॉक्यूमेंट. ओके, वहां पे आपको ये बटन रिबन पे आपको ये बटन व्यू होगा, दैट क्लोज हेडर एंड फुटर बटन. ओके, सो फाइनल स्टेप कैसी रहती है ये देखो. अभी फॉर एग्जांपल इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक करना है. इंसर्ट टैब के ऊपर से आपको यहाँ पे ऑप्शन है हेडर और फुटर. डिपेंडिंग अपॉन योर नीड, आपको हेडर इंसर्ट करना है या फिर फुटर इंसर्ट करना है, पहले उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ से क्लिक करना है. अगर आपको हेडर इंसर्ट करना है तो हेडर के ऊपर क्लिक कीजिए. फिर यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट जो भी एमएस वर्ड के पास डिफरेंट हेडर टाइप्स है वो आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा. यूजर को जिस टाइप में हेडर राइट करना है दैट ही कैन सिलेक्ट फ्रॉम दैट, एंड सिलेक्टेड हेडर यहाँ पे क्या होगा, फिर आपका डिस्प्ले होगा. ओके, टॉप राइट कॉर्नर में आप देख सकते हो क्लोज हेडर एंड फुटर. अगर आपको हेडर एंड फुटर क्लोज करना है तो वो आप ये बटन पे क्लिक करके क्या कर सकते हो, हेडर एंड फुटर क्लोज कर सकते हो, और फाइनल रिजल्ट जो रहेगा वो ऐसे स्क्रीन पे आपका दिखेगा. सो दिस इज हाउ वी विल इंसर्ट द हेडर. सिमिलरली फुटर भी कैसे इंसर्ट करते हैं, सेम ऐसे ही रहेगा, सिर्फ वो किधर रहता है, तुम्हारे बॉटम ऑफ योर पेज. ओके, एवरी पेज के बॉटम में आप क्या लिखते हो, फुटर है, तो वहां पे वो कैसे इंसर्ट करना है, सेम फुटर के ऊपर क्लिक कीजिए. फिर दैट फुटर विल बी डिस्प्लेड ओवर हियर. देन डिपेंडिंग अपॉन दैट आपको फुटर सिलेक्ट करना है, और वो जो फुटर सिलेक्ट किया जाएगा दैट विल बी अप्लाइड टू योर डॉक्यूमेंट. दिस इज हाउ यू विल इंसर्ट फुटर. ओके, देन द नेक्स्ट इज हाउ टू इंसर्ट द पेज नंबर. ओके, अभी पेज नंबर इंसर्ट कैसे करना है, तो पेज नंबर इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे आप देखो इंसर्ट टैब के नीचे हेडर है, फुटर है और पेज नंबर है. अगर आपको पेज नंबर इंसर्ट करना है तो आप किस पे क्लिक करोगे, पेज नंबर के ऊपर क्लिक करोगे. देन जब आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको लिस्ट ऑफ ऑप्शंस मिलेंगे टू डिस्प्ले योर पेज नंबर. पेज नंबर डिस्प्ले करने के नंबर ऑफ ऑप्शंस रहेंगे. आपको टॉप में चाहिए, बॉटम में चाहिए, करंट पोजीशन पे चाहिए, कहाँ पे चाहिए, वो आप क्या कर सकते हो, उसमें से डिसाइड कर सकते हो. फिर सेकेंड स्टेप क्या रहते हैं कि आपको क्या करना पड़ता है, आपका माउस पॉइंटर मूव करना पड़ता है टू सी द डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ पेजेस नंबर विच इज डिस्प्लेड. तो आपको कैसे पेज नंबर चाहिए वो आप उस पे से सिलेक्ट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल ये देखो, इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक किया है, फिर यहाँ पे मैंने पेज नंबर्स था, पेज नंबर के ऊपर क्लिक किया है. दिस आर द डिफरेंट वेज इन डिफरेंट ऑप्शंस इन विच यू आर कैन असाइन द पेज नंबर टू योर डॉक्यूमेंट. पेज नंबर बटन के ऊपर क्लिक किया है तो ये मुझे नंबर ऑफ ऑप्शंस मिले. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको पेज नंबर कैसे चाहिए, राइट कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर, सेंटर,
इन बिटवीन डिपेंडिंग अपॉन यूजर, आपको जो चाहिए उसके ऊपर क्लिक करो, दैट विल बी अप्लाइड टू योर होल डॉक्यूमेंट. ओके, this is how we will insert the page number to your MS Word document. Now the next function is how to use the bullet or number list. तो बुलेट्स और नंबर्स कैसे इंसर्ट करना है हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट में, उसके लिए दिस इज वेरी इजी. ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट स्लाइड में, और आप सबको पता भी है कि हमें कैसे यूज करना है. तो क्या करना है, सिंपल वे है कि जो भी लाइन है उसको हम क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ लाइंस में कन्वर्ट करेंगे, और फिर उसके लिए हम पर्टिकुलर नंबरिंग या फिर बुलेट असाइन करेंगे. ओके, अभी उसके लिए हम कैसे असाइन करेंगे, तो उसको जो लिस्ट ऑफ टेक्स्ट रहेगी हमें असाइन करना है बुलेट और नंबर, उसको हम पहले क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे वो पोर्शन ऑफ टेक्स्ट. फिर हम क्या करेंगे, बुलेट बटन के ट्रायंगल के ऊपर क्लिक करके लिस्ट ऑफ बुलेट्स हम क्या करेंगे, डिस्प्ले होगा, उसमें से जो पर्टिकुलर बुलेट आपको चाहिए वो आप ले सकते हो. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, होम में आप जाओगे, उसके बाद यहाँ पे ये एरो है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुलेट्स अवेलेबल है तुम्हारे MS वर्ड के लाइब्रेरी में, वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगी. उसमें से आपको जो बुलेट यूज करना है उसके ऊपर आपको क्या करना है, सिंपली क्लिक करना है. जिस बुलेट पे आप क्लिक करोगे दैट बुलेट विल बी अप्लाइड टू योर डॉक्यूमेंट. तो जितना पोर्शन आपने सिलेक्ट किया है उसको क्या होगा, वो असाइन हो जाएगी. दिस इज हाउ वी विल इंसर्ट द बुलेट. और नंबरिंग उसके बाजू का जो है वो नंबरिंग के लिए, अगर आप नंबरिंग के ऊपर क्लिक करते हो तो बाय डिफॉल्ट जो भी नंबरिंग डिफरेंट नंबरिंग के फॉर्मेट्स अवेलेबल है MS वर्ड के पास वो आपको डिस्प्ले होंगे. लाइक नॉर्मल 1 2 3, कैपिटल ABC, स्मॉल ABC, देन numbers with rounded half circle, Roman numbers. ओके, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबरिंग्स आर अवेलेबल. तो जितनी भी अवेलेबल है वो आपको क्या होगी, यहाँ पे डिस्प्ले होगी. उसमें से जो चाहिए वो यूजर क्या कर सकता है, सिलेक्ट कर सकता है. दिस इज हाउ अ पर्टिकुलर नंबरिंग और बुलेट कैन बी सिलेक्टेड. द नेक्स्ट इज द डॉक्यूमेंट रूलर. नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ डॉक्यूमेंट रूलर. जैसे कि हमने जब एक्सप्लेन किया था तभी देखा था कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये रहते हैं, रूलर्स रहते हैं MS वर्ड में. जो आपके डिफरेंट टाइप्स के टेक्स्ट है या फिर ग्राफिक्स है या फिर टेबल डिजाइन है, उसके अलाइनमेंट के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं. मोस्टली हॉरिजॉन्टल रूलर आपको कहाँ पे दिखती है, एट द टॉप ऑफ योर वर्ड डॉक्यूमेंट, वेरएज वर्टिकल कहाँ पे दिखती है आपको, लेफ्ट एज ऑफ योर डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट के लेफ्ट एज पे आपको वर्टिकल रूलर दिखती है, और टॉप ऑफ योर डॉक्यूमेंट वर्ड के डॉक्यूमेंट को आपको हॉरिजॉन्टल रूलर दिखती है. तो उससे आप क्या कर सकते हो कि मोस्टली आपको जो भी डेटा डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है तो उसकी प्रिंट लेआउट आप जब देखते हो तो ये रूलर के हिसाब से आप देख सकते हो. ओके, देन नेक्स्ट इज द टैब स्टॉप. नाउ टैब स्टॉप क्या रहता है, व्हाट इज द यूज ऑफ टैब स्टॉप. तो टैब स्टॉप किसके लिए हेल्पफुल है, जब आप लार्ज नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हो या फिर टेबल्स में लार्ज नंबर ऑफ डेटा राइट किया है, वो डेटा आपको क्या करना है, अगेन राइट करना है उसमें. जब आप रिज्यूम करोगे उसको फिर से, तो उसके लिए आप टैब स्टॉप यूज कर सकते हो. तो टैब स्टॉप के लिए आप कैसे करोगे, कि आपको वो टैब कहाँ तक कब तक क्लिक करना है, जब तक आप लेफ्ट हैंड ऑफ योर रूलर नहीं पहुंचते हो जहाँ पे आपको कौन से टाइप का टैब सेट करना है वो आपको वहां पे मिलेगा, और फिर आपको वहां से सिलेक्ट करके टैब स्टॉप बोलना है. ओके, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैब स्टॉप अवेलेबल है MS वर्ड में. फर्स्ट है लेफ्ट टैब. लेफ्ट टैब किसके लिए है, तो जो भी अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट टू द लेफ्ट करना है दैट इज डन बाय यूजिंग द लेफ्ट टैब. ओके, अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट टू द लेफ्ट इज डन बाय द लेफ्ट टैब स्टॉप. वेरएज सेंटर टैब किसके लिए यूज किया जाता है, कि जो भी टेक्स्ट है वो राउंड द सेंटर टैब अगर आपको करना होगा तो आप कौन सा यूज करोगे, सेंटर टैब. राइट टैब किसके लिए यूज किया जाता है, कि जो भी आपको टेक्स्ट की अलाइनमेंट करनी है वो राइट साइड से करनी होगी तो राइट टैब यूज करोगे. डेसिमल टैब कब यूज करोगे, जब अलाइनमेंट ऑफ दैट इज डन अलोंग द डेसिमल नंबर्स. डेसिमल नंबर्स के साथ अगर आपको अलाइनमेंट करनी होगी तो उसके लिए आप कौन सा टैब यूज करोगे, डेसिमल टैब यूज करोगे. और बार टैब कब यूज करोगे, जब आपको वर्टिकल लाइन आपके डॉक्यूमेंट में ड्रॉ करनी होगी, एट दैट टाइम यू विल यूज द बार टैब.
तो बार टैब कब यूज करोगे? जब आपको वर्टिकल लाइन आपके डॉक्यूमेंट में ड्रॉ करनी होगी तब आप यूज करोगे. सो दिस आर द डिफरेंट 5 टैब्स विच इज फाउंड ऑन योर रूलर. ओके, तो 5 ये टैब स्टॉप है जो आपके रूलर पे आपको डिस्प्ले होगी. लेफ्ट टैब, सेंटर टैब, राइट टैब, डेसिमल टैब एंड बार टैब. These are the 5 tab stops which is found on your ruler. Okay, so next is the next component, elementary component is working with graphics. Now working with graphics means what? You all have seen now how to insert the text. Okay, then how to insert the bulletin, how to insert the numbers, how to keep the orientation of your page, whether you want it in landscape mode or in portrait mode. This all concept we have seen. Now next is, after inserting the text, you will like to add the different types of shapes or pictures. This is nothing but this is the graphical point. So how to, now next point which we are going to see is working with graphics. Now working with graphics, in that the first we are going to see is how to insert the shape. Now how to insert a shape, in that you all can add the different types of shapes to your file, or you all can draw a complex shape also with this help of with the help of MS Word document. In that there are number of different shapes available. That can be circle is there, square is there, line is there, basic geometric shapes are there, then different types of stars are there, banners are there, callouts are there. So using that, all different types of arrow keys are also shown, that you all can add to your text, to your numbering, and you all can also have the quick styles assigned to them. Okay, now how to insert that shape we will see. In the insert tab, you all have to click on the insert tab, and then you all can see your shape. Then you all have to click on this shapes. You all can see your arrow. Click on that arrow. The number of shapes which are currently available can be seen over here. The shape which you want, just you all have to, what you all have to do, select that shape and drag it on your document area. As you will drop it on the document area, then you all can take it at any position in the document where you want that particular shape. Okay, now the shape has been inserted. After that, you all can write the text to this shape. Now I can write the text inside this shape. How I will write the text? For that, I will have to click inside this shape, and I will have to start the typing. As I click on the shape, inside of this shape, I can write anything what I want. I can write my name, my school's name. I can write whatever I want to write related to that shape. Okay, this is how I will insert the text in my shape. Next is how to format the shape. Now once I have entered the shape from the tab, then by using different drawing tools, I can format that shape. Okay, that is, formatting will appear as every time as I will click on the shape will take a position, or the different type of quick style will be assigned to that particular shape. For that, you will have to use the drawing tools from the format tab, and then you will have to click on quick style. From that, you will get the different types of formatted shapes. Okay, the next is the word art. The next type which we are going to see is the word art. Now have you all got it, how to insert the shapes, the different types of graphics? You all can insert the picture also. Now what is next is word art. Now what is the use of word art? Word art is nothing but वर्ड आर्ट क्या करता है, एक ऐसे फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम फैंसी वर्ड्स राइट कर सकते हैं. जो भी हमारा नॉर्मल टेक्स्ट है उसको हम फैंसी मोड में राइट कर सकते हैं. उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेज से हम क्या कर सकते हैं, हमारा डॉक्यूमेंट राइट कर सकते हैं. तो वो हम वर्ड आर्ट कैसे यूज करना है, तो उसके लिए डिफरेंट स्टेप्स है. तो अगर मुझे वर्ड आर्ट मेरे डॉक्यूमेंट में अप्लाई करना है, तो जो स्टेप मुझे फॉलो करनी है वो क्या करनी पड़ेगी, इंसर्ट टैब के ऊपर वर्ड आर्ट ऑप्शन पे मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा. तो फिर क्या होगा कि वर्ड आर्ट की जो गैलरी है वो मुझे डिस्प्ले होगी, उसमें डिफरेंट टाइप्स के वर्ड स्टाइल रहेंगे. फिर जो स्टाइल मुझे चाहिए, दैट स्टाइल आई विल जस्ट क्लिक ऑन इट, एंड वो स्टाइल से मैं जो भी डेटा राइट करूंगी वो स्टाइल में, दैट स्टाइल विल बी अप्लाइड टू माई डेटा. ओके, और फिर क्या करूंगी, जो भी मोस्टली फॉर फ्रिक्वेंटली यूज्ड ऑप्शन रहेगा वो मेरे वर्ड स्टाइल में क्या होगा,
हमें इजीली व्यू होगा। ये देखो ये वाला ऐसे रहेगा। इंसर्ट टैब के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे वर्ड आर्ट ऑप्शन दिखेगा। ओके, ए लिखा हुआ है और वर्ड आर्ट दिखेगा। इसके यहाँ पे जो ट्रायंगल है उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो जो भी डिफरेंट स्टाइल्स अवेलेबल है वर्ड आर्ट के MS वर्ड में वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगी। फिर यूजर को जो चाहिए वो उसके ऊपर क्लिक करेगा, फिर उसको एक विंडो आएगी जिसमें वो डेटा क्या कर सकता है, राइट कर सकता है। तो और ओके पे क्लिक किया तो जो वर्ड आर्ट उन्होंने जो स्टाइल यहाँ से सिलेक्ट की है दैट विल गेट अप्लाइड टू इट्स डॉक्यूमेंट। So in this way he can use this word art symbol for assigning the different style to his document. Okay, तो ये क्या है, ये डिफरेंट टाइप्स है। तो ये क्या है, तुम्हारी वर्ड आर्ट गैलरी है। नेक्स्ट इज हाउ टू इंसर्ट द पिक्चर इन वर्ड आर्ट। ये बहुत इजी है, आप सबको पता है कैसे पिक्चर इंसर्ट करते हैं वर्ड आर्ट में। सिंपल पिक्चर इंसर्ट करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या रहेगी, डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करो जहाँ पे आपको पिक्चर ऐड करना है। उसके बाद इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक करके वहां से कौन सा ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, पिक्चर ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। और फिर जो पिक्चर आपको इंसर्ट करनी है वो डायलॉग बॉक्स से इंसर्ट पिक्चर आपको क्या करनी पड़ेगी, चूज करना पड़ेगा। और फिर जहां पे आपको चाहिए वहां पे वो पिक्चर आप क्या कर सकते हो, इजीली इंसर्ट कर सकते हो। सिंपल है। इंसर्ट टैब के ऊपर जाइए, पिक्चर पे क्लिक कीजिए, देन दिस डायलॉग बॉक्स विल बी ओपन। यहाँ पे डिफरेंट इमेजेस रहेगी आपके लाइब्रेरी में। आपको जो इमेज चाहिए उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, जैसे यहाँ पे किया है, और इंसर्ट पे क्लिक करना है। जैसे कि इंसर्ट पे क्लिक होगा तो वो आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर क्या होगी, वो इमेज इंसर्ट हो जाएगी जहाँ पे आपने आपका पोजीशन ऑफ कर्सर रखा है वहां पे। अभी यहाँ पे पोजीशन ऑफ कर्सर यहाँ पे, तो ये जो पिक्चर सिलेक्ट की है इंसर्ट करने के बाद कहाँ इंसर्ट होगी वो पिक्चर, ये लोकेशन पे इंसर्ट होगी। अंडरस्टूड हाउ द पिक्चर विल गेट इंसर्टेड। नेक्स्ट है या फिर आपको डिफरेंट पिक्चर्स चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिप आर्ट है। ओके, क्लिप आर्ट के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा और जो पिक्चर आपको चाहिए, फ्लावर्स चाहिए या फिर जो भी चाहिए वो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। फिर आपकी क्लिप आर्ट लाइब्रेरी में से पर्टिकुलर इमेजेस आपको डिस्प्ले होगी और फिर जो इमेज आपको चाहिए उसके ऊपर क्लिक करके आप वो पिक्चर भी क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। ना स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स ये क्या है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ योर वर्चुअल इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन आपकी है उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। मतलब आपको इजीली ये क्रिएट कर सकते हो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैसेजेस रहते हैं। देखो, दिस कैन बी डन क्विकली, इट कैन बी क्विकली एंड इजीली क्रिएटेड choosing from among many different layouts to effectively communicate your message or idea। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स आपको अवेलेबल है। डिपेंडिंग आपको कैसे रिलेशनशिप शो करनी है या फिर हेराइची करनी है, मतलब आपको ट्री डायग्राम ड्रॉ करना है, साइकिल ड्रॉ करनी है या किसी की प्रोसेस एक्सप्लेन करनी है, उसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शन रहते हैं। अभी यहाँ पे क्या किया था, ऑल पे क्लिक किया है तो फर्स्ट लिस्ट आया। तो लिस्ट में आपको कौन से टाइप का चाहिए, अभी यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया है, दिस इज द बेसिक ब्लॉक लिस्ट। इसमें आपको क्या है, नॉन सिक्वेंशियली जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो आप इसमें राइट कर सकते हो। अगर आपका सिक्वेंशियल इन्फॉर्मेशन रहेगा, दैट इज वन इज डिपेंडेंट ऑन अदर, तो उसके लिए आप यहाँ से डिफरेंट लोगे। डिपेंडिंग अपॉन योर आर्किटेक्चर यहाँ से आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो और ओके कर सकते हो। फिर ये आपके डॉक्यूमेंट में क्या होगा, इंसर्ट किया जाएगा। दिस इज हाउ द स्मार्ट आर्ट ग्राफिक इज यूज्ड। The next is the tables. Now how to insert the table. See, this is the inserted format. First I will read the concept and then I will explain you in short. Tables mostly it is used to create the list or format the text in an organized fashion. Organized manner में अगर आपको data write करना है then that data is written in the form of tables. Then first is how to insert a table. Table अगर insert करना है तो उसके लिए अपने को क्या करना है, we will have to click on the insert tab, then on the insert tab then you will have to click on the table button, then you all will get the simple read as shown below, then you all have to move the pointer। see, मैं डायरेक्ट एक्सप्लेन करती हूँ। इंसर्ट पे जाना है, इंसर्ट पे क्लिक करो, यहाँ पे टेबल है, ठीक है, टेबल के ऊपर क्लिक करो, फिर यहाँ पे आपको ग्रिड्स दिख रहे हैं।
ओके, दिस ग्रेड्स इंडिकेट्स आपको टेबल कितना बाय कितनी लेंथ इनटू विड्थ. ओके, द टेबल शुड बी ऑफ हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स, वो आपको यह ग्रेड पे से सिलेक्ट करना है. अभी यहाँ पे क्या चल रहा है, कितने कॉल ये है, दिस आर 1 2 3 4, दिस आर कॉलम्स and this is 1 2 3, these are rows. okay, so column into rows यहाँ पे आपको मेंशन करना है. अभी यहाँ पे कितना सिलेक्ट किया है, 4/3, that means 4 columns and 3 rows सिलेक्ट किए. अगर आपको बड़ा टेबल क्रिएट करना है तो यहाँ पे आप इंसर्ट टेबल पे क्लिक कर सकते हो. फिर आपको वहाँ पे मेंशन करना है नंबर ऑफ कॉलम्स कितना चाहिए और नंबर ऑफ रोज कितना चाहिए, और फिर इंसर्ट बोलना है. तो वो जितने कॉलम्स और रोज आपने डिसाइड किए वो आपके डॉक्यूमेंट में अप्लाई होगा. दिस इज हाउ यू विल इंसर्ट अ टेबल टू योर डॉक्यूमेंट. नेक्स्ट, अगर मैंने क्या किया है, टेबल क्रिएट किया है पर उसमें अगर मुझे याद आया कि मुझे एक कॉलम ऐड करना है या फिर रो ऐड करना है, तो हाउ आई विल ऐड दैट रो और कॉलम. Then I will have to follow the step. The first step is click on the row where you want to add the additional row and click on the layout tab. Then it will show you the following screen. Then you will have to use the row and column group of button to add any row below or above the selected row. If you click on the insert button below, then it will just add a row below the selected one. Okay. अभी अगर आपको एक रो ऐड करनी है तो रो कैसे ऐड करना है. सपोज नाउ यहाँ पे एग्जांपल में दिखाया है, लेआउट टैब में आपको जाना है. यहाँ पे इंसर्ट है, अबाव, बिलो, राइट, ये ऑप्शंस दिए रो और कॉलम के लिए. अभी आप क्या कर सकते हो, एक तो यहाँ टेबल के बाहर आपका कर्सर रख के एंटर की प्रेस कर सकते हो तो न्यूली रो जनरेट होगा, या फिर आपको रो कहाँ पे लेना है वो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा. पेज लेआउट के ऊपर आप क्लिक करोगे, फिर यहाँ से आपको कहाँ इंसर्ट करना है वो बटन आप सिलेक्ट करोगे और फिर वहां पे आपकी रो ऐड की जा सकती है. दिस इज हाउ यू विल ऐड न्यू रो और न्यू कॉलम. ये बहुत इजी है. अगर सिमिलरली डिलीट भी करना होगा तो डिलीट करने के लिए आप क्या करोगे कि टेबल में से आपको क्या डिलीट करना है, वो डिलीट टेबल ऑप्शन लेआउट में से आप क्या कहाँ पे सिलेक्ट करोगे, डिलीट के ऊपर. फिर वहां पे आपको एंटायर टेबल डिलीट करना है, एंटायर रो डिलीट करना है, एंटायर कॉलम डिलीट करना है, वो सिलेक्ट करना पड़ता है. और सिलेक्ट करने के बाद डिलीट की प्रेस करो, आपका वो पर्टिकुलर रो या फिर कॉलम डिलीट हो सकता है. द नेक्स्ट इज द स्पेल चेक. नाउ स्पेल चेक ये क्या है, स्पेलिंग्स एंड ग्रामर चेकिंग के लिए यूज किया जाता है, जिसमें क्या किया जाता है कि एवरी टाइम योर स्पेलिंग इज चेक. अगर आप डॉक्यूमेंट राइट करते वक्त आपके टेक्स्ट के नीचे अगर रेड कलर की लाइन आती है, देन दैट इंडिकेट्स देयर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक. ओके, अगर ग्रीन कलर की लाइन आती है देन दैट इंडिकेट्स देयर इज अ ग्रामर एरर. और ब्लू कलर की लाइन आती है तो करेक्टली वर्ड राइट लिखा है पर उसकी जगह मिसयूज हो गई है दूसरे वर्ड से. तो ये 3 टाइप्स के एरर्स आते हैं. तो वर्ड इजीली हमने मिसस्पेल किया है कौन सा वर्ड, या ग्रामर मिस्टेक है या फिर स्पेलिंग मिस्टेक है, ये वर्ड इजीली आइडेंटिफाई करता है बाय यूजिंग दिस स्पेल चेक ऑप्शन. तो समझ में आया, अगर रेड टेक्स्ट के नीचे आया है तो स्पेलिंग मिस्टेक है, ग्रीन आया रहेगा तो ग्रामर मिस्टेक है, और ब्लू रहेगा तो आपका वर्ड स्पेल जो हुआ है वो मिसयूज हुआ है. ओके, आपने करेक्टली बोला है पर वो मिसप्लेस्ड हो गया है. ओके, तो ये 3 टाइप्स के स्पेल चेक ऑप्शन है जो वर्ड में इजीली अवेलेबल है. और दिस इज यूज फॉर decently and it is used in word. This is one of the special feature. Okay, so how to use that, it is it is very simple. These are the some of the steps which you will have to follow for spell check option. But just remember what is the use of spell check. उसमें क्या किया जाता है, वर्ड में ऑटोमेटिकली चेक किया जाता है. इफ देयर इज स्पेलिंग एरर रेड रहता है, इफ देयर इज ग्रामेटिकल एरर ग्रीन रहेगा, और अगर मिसस्पेल्ड हो गया है तो ब्लू कलर से दिखाएगा. सो दिस इज हाउ द स्पेल चेक ऑप्शन इज यूज्ड. नाउ हाउ टू इंसर्ट दिस स्पेल चेक ऑप्शन इनटू योर डॉक्यूमेंट, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट lecture. Thank you.